अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक बार फिर से 1000 रुपये के नोट की वैल्यू जब महंगाई का रेट सिंगल डिजिट पे आ गया हो बनाम सरकार। सब्जियां दे रेट 4 महीने पहले जो सन ਉਹ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ? नहीं घट होए ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਟਰ ਹੈਗੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੰਡੀ ਇਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਰੇਟ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਇਹ ਬੈਂਗਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਗਰਮੀ ਹਲੇ ਛਾ ਨਹੀਂ ਘੀਆ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ। ਆਹੋ ਬਸ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੋ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜੇ ਮੰਡੀੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਲੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਜੋ ਰੇਟ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਧਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੈਸ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਕੋਈ ਬਚਤ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿसी ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ 2500 ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3000 ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜਦਾ ਦਸਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਕੁਛ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਣ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਉਹ ਕਮੀ ਕੁਮੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਨਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ है? गुड। 4 महीने पहले जो चीज़ों की कीमतें थीं क्या वो कम हुई हैं? नहीं कोई रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है आपकी चीज़ों को लेके? आप जो घर में खर्चा करते थे 4 महीने पहले वो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? नहीं, चीज़ें कुछ महंगी हुई हैं, कम तो नहीं हुई। सस्ता कुछ नहीं हुआ। आपके खर्चे में कोई फ़र्क आया? कोई नहीं यहाँ जो चीज़ें आप बेच रहे हैं इसको लाने में कुछ कमी महसूस हुई है आपको? नहीं, कोई नहीं, कमी नहीं महसूस हुई। उतना ही है। ये गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने सिंगल डिजिट पे 10% से नीचे महंगाई ले आए हुए हैं, तो आपको वो महसूस नहीं हो रही? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं है ऐसी कोई बात नहीं। आप जो महीने का खर्चा करते घर में कमा के यहाँ से लेके जाते हैं वो जिस तरह पहले था उसी तरह ही है? इसी तरह ही है, कुछ कमी कुछ सेविंग नहीं हो रही? कमी नहीं है। हाँ, बल्कि कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं अब तो। बढ़ रही हैं। ठीक है, आपको समर उसका भी नहीं मिल रहा। नहीं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाथ। आप क्या कहते हैं भाईजान, कम हुआ? रेडी है। रेडी दे दसो कोई सामान सही पे सस्ता विक रहा है कि नहीं विक रहा? नहीं सर, जो अज तक कोई फर्क ਕਿਹੜੀ नहीं ਰੇੜੀ ਹੈ ਵਾਲੀ? पड़ा। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? पहले उसी तरह से होने का बिल्कुल कम डाउन हो गया, समझ तो कम बाहर होया पे। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੱਲਿਓਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? हाँ जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ किसी दिन तो रोटी का खर्चा भी नहीं निकलता, समझ तो कम बाहर हो जाता। ਇਹ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿन ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੈਸੇ घट का। होया जी, सानू तो कोई समझ नहीं आ रहा की हो रहा है। चलो अल्लाह रहम करे साढ़े। 4 महीने पहले पीछे चले जाएं हम और आज के दिन में चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं? नहीं, जो आप बेच रहे हैं या खरीद के लाते हैं बड़ी हैं, बढ़ी हैं? बड़ी हैं, यहाँ पर जो आप बेच रहे हैं चीज़ें वो आप जब बाहर से लेके आते हैं आपको पहले से कीमतें ज़्यादा हैं? ज़्यादा हैं। यार वो तो कहते हैं महंगाई ख़त्म कर रहे हैं हम, और आप भी फिर उसी तरह बेचते होंगे ना? बस सिर्फ एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया हुआ उन्होंने, आटे के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, डेट्स ऑल। और किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं किया हुआ। हम मार्केट जाते हैं, हमें रेट महंगे मिलते हैं, ज़ाहिर सी बात है। हमने भी फिर प्राइस रेट लिस्ट के हिसाब से हमें जो है ना कंट्रोल रेट पे बेचना पड़ता है, नुकसान पे बेचना पड़ता है हम लोगों को। हम ला के सस्ते बेचने पड़ते हैं। चीज़ें ला के सस्ते बेचना पड़ता है। बाज़ औक़ात हम चीज़ ही वो नहीं लेकर आते जो कंट्रोल प्राइस से नीचे होती हैं, हम नहीं लेकर आते, आप रखते ही नहीं है? रखते ही नहीं है, छोड़ दी वो चीज़ें, मजबूरी हमारी छोड़ दी हम हमने। ये करते हैं कि हम आपसे बहस मुबाहिसा करें ना ग्राहक से, इससे बेहतर है कि वो चीज़ ही ना रखें। हम चीज़ ही नहीं रखते हम वो हम, चीज़ छोड़ ही दी है नहीं वो चीज़। मना तो कर आपको कमी नज़र नहीं आती? कमी नहीं है, प्राइस जितना रिज़्क़ हमारे नसीब में है, जितना हमारे नसीब में मिल जाता है अल्लाह का शुक्र है। कमी नहीं है? कमी कोई, सिर्फ आटे के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। घी का रेट भी बढ़ रहा है,
आए दिन घी का रेट बढ़ रहा है। ये बिल्कुल सूरत हाल आपके सामने है। ये भाई बता रहे हैं, परचून का यहाँ काम करते हैं, कि वो जो कीमतें लेके आते हैं उन कीमतों के अंदर इनको प्रॉफिट जो है वो नज़र नहीं आता, और जो कीमतें कम होने की बात हम सुन रहे हैं जब सड़क पे आते हैं तो वो नहीं मिलती। 1000 रुपये की इसका मतलब कीमत जो सी वही रह गई। आग किसने लगा दी भाई? धुआं देखे ना, तो ये अंदर से धुआं निकल रहा है तो उसका कौन देखेगा? मैं ये जो वही अंदर से जो निकल रहा मैं है वही हमारे, सोच रहा हूँ कि वो ये कौन देखेगा? ये तो नजर आ रहा है। मार्केट के अंदर कस्टमर भी नहीं है इस तरह। हालात देखें आप मार्केट आप के। देख रहे हैं बिल कितने बड़े बड़े हैं, आमदनी कम खर्चे लेकिन वो ज्यादा। बीबी मरियम ने जो 2 महीने का रिलीफ दिया है वो भी तो मिला है वो लोगों 2 को। महीने का रिलीफ दिया, 10 महीने का लिया भी तो है। मेरा 6वें महीने का 196 यूनिट था, 7वें 8वें महीने में बिल नहीं जमा कराया, मेरा बिल आया 14,000। 3 महीने रिलीफ 3,000 रिलीफ दिया, 3,000 का हार के 11,000 मैंने जमा कराया, और अच्छा छठे में दिया 7वां 8वां का 11,000 कराया। बाहर महीने की 9वें आमदनी महीने कितनी है आपकी? 9वें महीने में मेरा बिल आया 196 यूनिट का 6,500, मैं नहीं जमा करा सका। आपकी आमदन कितनी है? मेरी आमदनी है कि हैंड टू माउथ, मैं रिक्शा लोडर चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लग गई तो रोजी, ना लगा तो रोजा। आपकी आमदन बढ़ी है? नहीं बढ़ी, कम हुई है। जो दिन ब महीना कमाते दिन हैं। ब दिन दिन ब दिन कम होती गई। दिन ब दिन कम होती गई है, दिन ब दिन कम। थोड़ा सा हिसाब इस तरह बन जाता कि भाई इसके पास थोड़ा काम कर लिया, कभी इसके पास कर लिया। कि रोजी रोटी का तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला की- अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करता है। बहुत शुक्रिया। जो हमारे वजीर खजाना है वो कहते हैं कि सिंगल डिजिट पे आ गई है, यानी कि हमने जो थी डबल डिजिट यानी 38%, वो 40% ऊपर जा रही थी, वो हम उसको 10 से नीचे ले आए हुए हैं। तो आपको लगता है कि कम कुछ? बिल्कुल कह रहे हैं, तो उसमें कुछ सदाकत है। वो किस तरह? एज ए शॉपकीपर हम कुछ चीज़ें देख रहे थे कि वो रोज़ यानी डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं उनके रेट। ठीक है। हमारे केमिकल्स, कुछ ऐसी आइटम, लेकिन अब एक तो वो मुस्तहकम हो गई कुछ आइटम, बिल्कुल ठीक है। और कुछ के कम भी हुए, अच्छा, कुछ के कम भी हुए। ठीक है। लेकिन जो वो रेट कम हुए हैं, उस ऐसे रेट का कम हुए हुए का क्या हमने करना है कि बिल इतने ज़्यादा हो गए, हमारी आमदन उतनी ही हो तो बिल ज़्यादा हो तो मैनेज कहाँ करोगे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या लगता है आपको जो बीबी मरियम ने 2 महीने का रिलीफ दिया था वो बेहतर था? वो उन लोगों के लिए बेहतर था जिनका बिल बहुत मुनासिब सा आता था, उनको रिलीफ मिल गया। 500 यूनिट के अंदर आता था। हाँ, तो अब मेरा 1070 यूनिट का बिल था, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, तो इनको तो बिल भरना ही है। लेकिन भाई इतना भी नहीं भरना है, 65,000 रुपये बिल भर रहा है, कोई खौफे खुदा एक एसी चलाना है, बिल्कुल वो भी ठीक कह ज्यादती रहे हैं। है ना फिर। तो आपको लगता है कि महंगाई कम हुई है? ऐसा नहीं, जो कुछ बेसिक आइटम्स कम हुई, जिस तरह घी का रेट बहुत ऊपर जा रहा था, तो मैं पहले पेटी लेके आ रहा था, पता नहीं वो 2800-2900 रुपये की घर के लिए, तो ये चीज़ें बेचता नहीं तो इसलिए लेनी पड़ती हैं। तो लेकिन अब वो जो है ना वो 2500 के राउंड अबाउट आ गई। यानी इसका मतलब आपके घर में जो राशन आ रहा था उसकी कुछ लेकिन उसके कुछ कम के अलावा जो बहुत सारा बढ़ा है उसका कौन जिम्मेदार है? और फिर टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि आप हर चीज़ में बिलों में इतना सारा टैक्स है, वो भी फिर उसके अलावा आप कोई भी यानी कह लें कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको फलां टैक्स देना है, गेन टैक्स देना है, फलां टैक्स देना है, वो उस आप कुछ भी खुल के कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। आपको पता है ताजरों ने सबसे कम टैक्स दिया? हमारे पास आपने नहीं, लेकिन बड़े बड़े ताजरों की बात मैं कर। हैरानगी की बात बताऊं, जब उस दौर का मैं टैक्स पेयर हूँ जिस दौर में मुशर्रफ ने बहुत आगे सख्ती की थी, हड़तालें चली थी, पता नहीं क्या कुछ किया था, कितने दिन दुकानें बंद रही थी। उस दौर में नया ID कार्ड बना था मेरा, अब्बा ने कहा तुम्हें भी टैक्स पेयर बनाना है। मैं कहा जी मैं तो ना अभी दुकान पे थोड़ी टाइम बैठता हूँ, पढ़ता हूँ मैं तो। कह रहे नहीं कोई ज़रूरत नहीं, बनो। अब उन्होंने वहाँ पे एंट्री करवा दी, FBR में मेरी भी, अब वो जब से मैं टैक्स भर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको इसका सिला देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चाय कम हुई है कि नहीं हुई? रोज़मर्रा की अशिया में आपको जो कीमतें मिल रही हैं, जो आप चीज़ें खरीदते हैं, वो कम हुई हैं कि नहीं हुई? पहले की निस्बत कम है कि नहीं है? आए हमारे साथ। रोटी खान तो आवाज आ रहा महंगाई नहीं मुक्की? ना हर शय महंगी बाबूजी। आमदन तो खत्म हो गई है बिल्कुल, आमदन तो खत्म हो गई? परेशान इतने ज़्यादा हुए हैं। चने की दाल 11,600 रुपये का बैग था, आज 19,000 रुपये का बैग है। सरकारी अफसरान की बात तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो हम जैसे लोग हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। तो अगर इजाफा नहीं हुआ तो जो हुकूमत बार बार कह रही है, हमारे वज़ीर ख़जाना बड़े वसूख से कह रहे हैं कि महंगाई को वो सिंगल डिजिट पे ले आए हुए हैं, तो वो सिंगल डिजिट का समरात जो उनसे हैं वो जनरल पब्लिक को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, यही जानने के लिए हम सड़क पे आए हैं। ये 1,000 रुपये का नोट है मेरे पास, जिसको कमाना यकीन मानने बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें 18,000 से शुरू होती हैं, 15,000 से शुरू होती हैं,
जो 25,000 30,000 35,000 रुपये ख़त्म हो जाती हैं। हालांकि सरकारी रेट जो सा है मजदूर की पर एक दिन की उजरत का वो बढ़ गया हुआ है। महीने की आमदन जो सी है वो 32,000 रुपये जा चुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये 1000 का नोट आप एक दिन में कमाना बड़ा मुश्किल होता है। 700-800 जो है ना वो आम आदमी कमा पाता है, रक्शे वाला 1000 रुपया कमा पाता है। ये सारा कुछ हम करके देख चुके हुए हैं कि आप कितनी देर में कितने पैसे कमा सकते हैं। तो ये 1000 का नोट है, इस 1000 के नोट में क्या क्या कुछ खरीद सकता हूँ मैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बताएं कि गवर्नमेंट कहती है महंगाई कम हुई है, हम उसको सिंगल डिजिट पे ले आए हैं, क्या ऐसा आपको नज़र आता है बाहर? कई चीज़ों में देखा है, कुछ चीज़ों पे तो आई है। आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ा है इसका? ये जो आप महंगाई इस तरह नहीं कर सकते कि भी इतना यानी कि असर घर पड़ा का हो। जो आप खर्चा आपका जो था आज से 6 महीने पहले वो अब कम हुआ है और आप बचा रहे हैं। उससे तो काफ़ी कम होगा। आप बचत कर रहे हैं, आप बचत कर रहे हैं, उससे तो कम होगा। बिल्कुल ठीक इसमें है। तो अब कोई यानी कि शक आपके पैसे जो उनसे हैं जो आटे में भी कमी हुई है, दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी, पेट्रोल में भी काफ़ी चीज़ों में हुई है, बेहतरी हुई है, बेहतरी हुई इसमें है, कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि अब चीज़ें बेहतर सिमट इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको लगता है कि बेहतरी आई है? हाँ जी, बेहतरी तो आई है, थोड़ी कम हुई है चीज़। 6 महीने पहले जो जिस वो तो बहुत महंगाई थी, वो ज़्यादा थी। हाँ जी, बिल कितने आते थे, अब ज़रा बिल भी कम हुए हैं। तो मौसम भी चेंज हो गया। मौसम भी चेंज हो गया, ये नहीं वैसे सही है, चीज़ें बेहतर हुई हैं। हाँ जी, अल्लाह करे जी बेहतर हूँ। बेशक जी, बिल्कुल फेवरेट। बहुत शुक्रिया जी। अभी आपके पास जो सारा सामान पड़ा है ये आप बेचने, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? आप मैं यहाँ पर मुझे कम से कम 25 से 26 साल हो गए। मैं अभी जो कीमतें चल रही हैं सारी आपको अंदाज़ा होंगी, ये कुछ पिछले 6 महीने में कम हुई हैं किसी नहीं। भी चीज़ में? कम हुई थी पर एकदम अबव होती जा रही हैं। कम हुई थी? कम हुई थी है नहीं। कितना अरसा पहले कम हुई थी? ज़्यादा तो 2-2.5 माह। 2-2.5 माह पहले कम हुई थी। फिर अबव होनी शुरू हो गई हैं, अब फिर बढ़नी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजूहत भी नहीं पता चल रही। आप मुझे चने की दाल का बता रहे थे, वो क्या मसला हुआ? चने की दाल 11,600 रुपये का बैग था, आज 19,000 रुपये का बैग है। बड़ा वाला कितने तोला का? 20 किलो का? 50 kg का। 50 kg का 19,000 का बैग है। 19,000 रुपये का हो गया हुआ है। ओहो, तो ये और जो मैंने सुना कि घी की कीमत बढ़ी है, अभी टीवी पे 50 रुपये पेटी मगर बढ़ गया हुआ है, 10 रुपये पर पीस में। ऑयल का भी रेट बढ़ गया हुआ है, वो भी इतना ही बढ़ गया हुआ है रेट बढ़ते जा रहे हैं। रेट बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की कुव्वत खरीद कैसी है यहाँ? मैंने आटा नहीं रखा हुआ, पर यकीन करें कि 75 रुपीज़ 20 किलो के पर थैले में रेट बढ़ चुका हुआ है। तो मुझे इनके अखबार वगैरह पढ़ने का शौक़ नहीं है, पर जब हेडलाइन आई है ना तो मैं कहता हूँ यार आखिर हो गई है, एंड कर दिया इन्होंने। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। अच्छा ये गंदम में इन्होंने गंदम खरीदी हुई पहले की रेट की। अच्छा ये बताएं, अपने घर में जो आप सामान लेके जाते हैं उसमें कोई खर्चा कम हुआ आपका? नहीं। जो आप राशन लेके जाते हैं अपने घर के लिए, कुछ भी नहीं कम हुआ। ग्रोसरी में कुछ कमी आई है? कोई भी नहीं। कोई कमी नहीं आई? कोई भी नहीं कमी, मज़ीद बढ़ गया रेट, मज़ीद बढ़ चुके हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अपना ख्याल रखें भाईजान, थैंक यू सो मच। भाई यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो सी है वो क्लेम करती है कि सिंगल डिजिट पे आ गए हैं। अब सिंगल डिजिट पे वो आ तो गए हैं, लेकिन सड़क पे आए हैं कि नहीं आए? सड़क पे सिंगल डिजिट हुआ कि नहीं हुआ, या सिर्फ वजीर खजाना के कागजों में सिंगल डिजिट हुआ? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ठीक है? अल्लाह की रहमत। वो कहते ने महंगाई मुक गई है। नहीं जी, कौन कहते ने पहले जड़ी सी वो कोई किन्ने परसेंट सी, हुन असी एक सिंगल ओदे ते ले आए हैं। ना ना, और ज्यादा हो गई है। रोटी खान तो आवाज़ महंगाई नहीं मुकी? ना ना, हर शय महंगी बाऊ जी। कोई अपने पैसे वधे ने ਜਿਹੜੇ रोज कमाते सो? नहीं जी, वो भी नहीं पैसे उत्थे ने, बच्चों की तनख्वाहां उत्थे ने, बिल इन्ने ने कि इंतहा हो गई। ਹੁਣ ਤੇ मौसम बदलिया, शायद कोई रिलीफ मिले। वो ਜਿਹੜਾ बीबी मरियम ने दिता 2 महीने वाला वो मिले है? वो मिले है। चलो ठीक है, चलो कुछ तो आया ना? नहीं आया है। हाँ, और बाकी कुछ नहीं, हर चीज़ ची महंगाई, कोई चीज़ नहीं। तुसी यकीन जानो अपनी आमदन किन्नी है महीने ਦੀ? मेरे बच्चे करते ने। किन्ने पैसे ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ? घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਿਆ ਘਰ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ।
अल्लाह ताला साडे हाल ते रहम करे। आमीन आमीन कुछ रब कहना? तो ही सिर्फ इल्तिजा है रहमत दी बस। आमीन, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मेहरबानी अल्लाह। मेहरबानी। थैंक यू, अपना ख्याल। वालेकुम सलाम। चीज़ें खरीदती हैं, पहले से कुछ फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। यानी कि जो 3-4 महीने पहले चीज़ें कीमतें थी उसी पे हैं? उस पे और ज्यादा हो गया। और ज़्यादा हो गया? हाँ जी। घर में आमदन आना ज़्यादा हुई है या कम हुई है? आमदन तो खत्म हो गई है बिल्कुल। आमदन तो खत्म हो गई? परेशान इतने ज्यादा हुए हैं। चलिए अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। हाँ आपको जी, लगता है कि महंगाई कम नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर जो तनख्वाह, एक ख़बर आपको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो तनख्वाहदार तबका है उसने तकरीबन 1550% ज़्यादा टैक्स दिया है ताजरों से। अब ये तनख्वाहदार तबका आप अपने इर्द गिर्द सारा देख लें, और ताजर वो हैं जो आप जाते हैं ना बड़े बड़े मॉल्स में, बड़ी बड़ी जगहों पे, जिनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जिनकी वो बड़े बड़े रोल्स रॉयसें खड़ी होती हैं, जिनके बड़े बड़े जहाज़ चल रहे होते हैं, जो अपने दो जहाज़ लेके फिर रहे होते हैं, अपने चीज़ों के मालिक होते हैं, मिलों के मालिक होते हैं, उनके मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने 1550% ज़्यादा टैक्स दिया है। और एक और ख़बर मैं आपसे शेयर कर लूँ, इसी जो ताजर तबका है, ये IMF की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, इंटरनेशनल इंग्लिश जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक, इन्होंने 0.009% टैक्स दिया है इस साल, जो ताजरों ने हमारी निस्बत। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको जब ये इतनी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आती हैं तो कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई एवेजन कर रहे होते हैं, और जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाह सोर्स से ही कट जाती है। वो बेचारे को इतना मौका ही नहीं मिलता कि मैं अपनी तनख्वाह कटाऊँ, रोकूँ, या मैं कोई वकील के साथ झोल झमेले करूँ। पाकिस्तान में कहते हैं ना झोल मोल करूँ, वो झोल मोल का टाइम नहीं मिलता। लेकिन ताजरों की गाड़ियाँ, ताजरों की सिर्फ सानू तो गड्डियाँ नज़र आती ना घर के अंदर, तो असं जाके वेख्या नहीं, जिन्होंने घर जाने उत्थे परेशान हो जाते हैं कि 2-2 करोड़ रुपए के तो सोफे पड़े हुए हैं वहाँ पे, और आप सोचने पड़ जाते हैं कि यार इन्ना कमाते हो, इन्ना प्रॉफिट है पाकिस्तान के बिजनेस, सानू तो नहीं मिलता। तो वो जाके देखें, ये तमाम के तमाम सूरत हाल आपके सामने है। ये ताजर जब एहतजाज करने भी आते हैं ना, तो एहतजाज में भी ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में पहुँचते हैं, और हम जैसे लोग जो हैं वो यही सोचते रहते हैं कि यार तुसी तो तनख्वाह के उत्ते ही टैक्स कटा के लेके आना है। आए आपकी एक दुकान में लेके चलता हूँ आपको। घट जरूर किया, लेकिन वधाया ज्यादा है, घट किया। आमदन 30-40 हज़ार है और खर्चा 1 लाख रुपए है। जितनी महंगाई होगी उतना मज़ा आता है काम करने का। ये गाचा सेब है पाकिस्तान का ना, थोड़ा सब स्टैंडर्ड है, लाल लाल नहीं है, बड़ा सेब नहीं है, सस्ता है 130 रुपये का। लाल सेब वहाँ लगा हुआ है 150 रुपये का, जो काला कुल्लू है, और उससे ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तो कीमत बढ़ती जाएगी। जो कमियाँ जो बताते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये सब स्टैंडर्ड चीज़ों की कीमतें जो सी हैं वो शेयर कर देते हैं कि ये जो सी है ना कीमत कम हो गई है और सस्ता हो गया आवाम के लिए, लेकिन आवाम जो सी है वो उसी तरह ही बिल आ रही है। मैं यही समझने से कासिर हूँ, में जाकर लोगों में बैठने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ज़िंदगी में तब्दीली आई है कि नहीं आई, क्योंकि हुक्मरानों की ज़िंदगियाँ तो बहुत तब्दील हुई हैं। आज से पहले कुछ अर्सा पहले जेलों में धक्के खा रहे थे, इधर उधर ज़िंदगी बड़ी परेशान थी, वो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों में आते थे, वो अब सारे के सारे चले गए हैं ऐवानों में, और उस वक्त जो ऐवानों में बैठे हुए थे वो सारे चले गए हैं अब जेलों में। तो चीज़ें जो सी हैं उनके हालात काफ़ी बदले हैं जो ऐवानों में बैठे हुए लोगों के, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो आम तबका है, जो सड़क पे रहते हैं, गली मोहल्लों में फिरते हैं, उनके लिए ज़िंदगी बदली नहीं है। आमदन जो सी है वो वहीं पे खड़ी हुई है, जो कीमतें हैं वो कभी बढ़ जाती हैं कभी कम हो जाती हैं, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई अभी तक। जो बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ है, जो पार्टी से मोहब्बत करता है उसके लिए तो कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी का उसके लिए बिल्कुल ही फना हो गई है। लेकिन आम आदमी कहता है उत्ते खिलौते हैं, असी हिले नहीं उतरों। दाएँ हुकूमत कहती है कि महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है, तो फ़र्क महसूस होता है कुछ? आप जब रोज़मर्रा की चीज़ें लेके आते हैं, कोई चाय पीने आते हैं, कि पैसे कम लगते हैं अब मेरे? नहीं, कोई फ़र्क नहीं, उतने पैसे ही लगते हैं, उतने ही। जिस तरह राशन लेके आते थे उसी तरह लगते हैं। आपकी आमदनी में इजाफा हुआ है? नहीं, मेरी आमदनी में कोई क्या इजाफा? आपके घर की आमदनी में, आपके घर में जो आमदनी आती है महीने की, उसमें इजाफा देखा आपने? कब से? ये कुछ महीनों में जब से ये गवर्नमेंट आई है। इन्फ्लेशन अल्हम्दुलिल्लाह 6.9% पे आई। महंगाई में आपने कमी देखी है? महंगाई में कमी आई है। आपके घर के अंदर असर आया उसका? असर आया। क्या असर आया? कितने पैसे कमाते हैं आप महीने के? हम माशाल्लाह तकरीबन 58,000 रुपये 58,000 रुपये महीने का आता है। तो उसमें जो पहले चीज़ें आती थी अब कुछ बचत होना शुरू हुई है? हाँ जी, बचत फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है, मगर मसनूई महंगाई को गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्ती के साथ कुचल देना चाहिए। महंगाई ये जो दुकानदारों ने की हुई है। अच्छा, आपको ये मसनूई लगती है? मसनूई है, ये मंडी से में सामान सस्ता है,
यहाँ बहुत महंगा होता है। तो आपको लगता है कि हुकूमत ये महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सकी? नहीं कर रही है, अब इंशाल्लाह ताला मुल्क जो है बिल्कुल घर की खाने का दलदल में जमात से ताल्लुक तो नहीं है आपका? हाँ नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान का। अनस्टेबल होने से बाज़ दुकानदार फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि उनको गाहक को पता नहीं कि भाई किधर चलेगी महंगाई। आपको लगता है कि ये जो अब मौजूदा हुकूमत है, आप माशाल्लाह प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते रहे हैं, आपको पता है कि ये जो सही की सिमत जो सी है वो दुरुस्त है, ठीक सिमत जा रहे हैं? सर मेरे बहुत से शिगिर्द हैं, मैं इस बात पे कमेंट नहीं करूँगा। कहेंगे सर ने ये कह दिया, सर ने वो कह देना, जो हकीकत है वो तो कह दें ताकि हमें उससे फ़ायदा हो सके। मेरा ख्याल है बाबा हमारा जो बाबा जुनाद है उनके बाद सिमत शायद ही मैं नहीं किसी की सही मानता, थोड़ी सी अयूब खान की सही मानता हूँ, बाकी सब की सिमत रॉन्ग ही है, कहीं और ही जा रहे हैं। हाँ। आपको लगता है कि इनके मफाद कौमी नहीं होते, ज़ाती होते हैं जब ये पावर में आते हैं? नहीं, अयूब खान के ज़ाती कौमी थे, उसके बाद तकरीबन ज़ाती हैं सबके ज़ाती हैं। ना महंगाई वधी है कि घटी है? ना घटी है ना वधी है। वो कहते ने ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਜਾਂ 9 ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 28 ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, 40 ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਵਾਧੀ ਇੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਲੈਣ। ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਵਧਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੀ है। आमदन घटी है? घटी है जी। देखिए मार्केट के अंदर जो है वो काम है नहीं, जब काम नहीं है तो कई कंपनीज ने जो है वो रिसोर्स जो है वो अपने कम कर दिए हैं। जहाँ पे जो है वो 50 बंदा काम कर रहा था, वहाँ पे जो है अब 30-35 बंदों के ऊपर डाउन साइजिंग हो गई है। आपको लगता है कि ये महंगाई कम नहीं हुई? नहीं, ये अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुई। ऐसा सुनने में आता, देखें पेट्रोल का रेट ज़रूर नीचे आया है, जब ऊपर जाता है तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं, लेकिन जब नीचे आता है तो वो स्टिल वहीं पे जो है उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया। आपको लगता है महंगाई कम हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने महंगाई कम कर दी है, रोज़मर्रा में कोई फ़र्क पड़ा नज़र आया? सही कह रहे हैं, जितनी महंगाई होगी उतना मज़ा आता है काम करने का, क्योंकि महंगाई कम होगी सुस्ती चढ़ जाती है, महंगाई ज़्यादा काम करने का मज़ा आता है। वेरी गुड। अच्छा, फिर जितनी महंगाई करे मज़ा आएगा। कमाल आदमी है आप। वो मोटिवेशनल स्पीकिंग किया करें, बड़ा अच्छा लगेगा आपका। ठीक है, मज़ा आ गया। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। भाईजान आपको लगता है महंगाई ख़त्म होती जा रही है? नहीं सर, किसी हद तक नहीं। घर में जो महीने का खर्चा करते थे वो डबल से ट्रिपल हो गया। और आमदन 30-40 हज़ार है और खर्चा 1 लाख रुपये है। तो कैसे करते हैं? बस अल्लाह की सुपुर्द, मालिक है पूरा कर रहा है, उसने वादा किया है खाने का वो दे रहा है, बाकी अखराजात पूरे नहीं हो रहे। रोज़मर्रा की चीज़ों में बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो ट्रिपल हो गए हैं। और टैक्स आपके ऊपर? उधार तो समझ लें कि अनगिनत है। अच्छा, मेरा ये कपड़े का काम है। उधार कितना आपके? तकरीबन होगा 8-10 लाख रुपये। 8-10 लाख का उधार है? तो कैसे अदा करेंगे? बस अल्लाह से कोई मुआवजा मांग रहे हैं, अल्लाह ताला वो उसकी देन है, वो दे सकता है। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, मेरी दुआ आपके साथ है। कह रही है कि जो महंगाई है जो डबल डिजिट पे थी वो कम हो के सिंगल डिजिट यानी कि 1 पे, यानी कि 9 पे हैं या 6-7 पे हैं, इस तरह किसी कोई डिजिट है। क्या आपको महंगाई में कमी महसूस हुई है? नहीं सर, नहीं, कोई कमी महसूस नहीं। कोई कीमतें किसी चीज़ की कम हुई हैं? किसी चीज़ कोई चीज़ कम? राशन में कम हुई है? राशन की किसी चीज़ में कम हुई? आप क्या कहते हैं? महंगाई जो जैसी थी, लोगों की आमदनी घट गई है, महंगाई डबल हो गई है। कुछ कम हुआ है जिससे लोगों का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया है। आप क्या कहते हैं, महंगाई कम हुई है? देखिए जी, महंगाई में रोजमर्रा अखराजात की बात कर रहा उसके हूं। अंदर सब्जी वगैरह में जरा कुछ बेहतरी आई है। सब्जी में? हाँ जी, और बाकी अदर किसी चीज़ में नहीं आई। घी बढ़ा? वो उसी रूट पे चल रहा है जो पहले चल रहे थे। अच्छा, क्या आपकी आमदन बढ़ी है? नहीं, आमदनी वही है और जो महंगाई है वो अप जा रही है। आमदन नहीं बढ़ी आपकी? आपकी आमदन बढ़ी है? नहीं सर, कोई नहीं, हमारी भी आमदनी नहीं बढ़ी। आपकी आमदन बढ़ी है? महंगाई कम हुई महसूस होती है आपको? बहुत कम। बहुत कम महसूस? कुछ कम हुआ? थोड़ा बहुत। क्या हुआ है? गंदम सस्ती हो गई, जिस तरह आटा सस्ता हुआ है? आटा सस्ता हुआ। उससे कोई फर्क पड़ा आपकी जिंदगी पे? नहीं। मैं महंगे तो कैसे फर्क पड़ेगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर हमारी आमदन नहीं बढ़ी तो फिर ये सिंगल डिजिट किस काम का? कोई फायदा नहीं है। जो बार बार कह रहे हैं मसला तो नहीं सारा था ना, आटे से मसला तो नहीं होता। आटे से मसला नहीं होता। क्या बच्चों की तालीम पे जो खर्चा करते थे वो ही वहीं का वहीं पे? वो भी बढ़ रहा है, फीसें बढ़ रही हैं। स्कूल की फीसें तो बढ़ती हैं। हाँ जी, वो कुछ भी नहीं। अब बच्चा, अब जो गरीब बंदा है ना,
वो तो पिसते जा रहा है। आपके बच्चे हैं? जी मेरा। कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा माशाल्लाह। आपने किसी ने बच्चों की शादियां की हैं? आपने बच्चों की शादी की है किसी ने? मैंने भाइयों की करी है। भाइयों की वालिद के मरने के बाद मैंने भाइयों की बहनों की शादी करी है। करनी है। आपने कितने करी है? आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है। आपके? मेरा एक बेटा एक बेटी है। बेटी की शादी की है आपने? नहीं, अभी वो पढ़ रही है। तो आपको लगता है कि उसकी शादी पे कितना खर्चा हो जाएगा? कम से कम 20 लाख रुपए। और आपने कितने में की थी अपनी बहन की शादी? उस टाइम तो सस्ता काम था, महंगाई इतनी नहीं थी। किस दौर में की थी? ये कम से कम 10 साल हो गए। कितने रुपए में की थी? उस टाइम लग गया था कोई 6 लाख लग गया था। आपको क्या लगता है कि बच्चों की शादी पे कितने पैसे लग जाएंगे? तकरीबन 20 से 25 लाख। बच्चियों की शादी में 25 लाख रुपए मस्ट है। मस्त है। और सोने का जिस तरह रेट है 3 लाख करीब 15 दिन डालता है। कोई सोचेगा भी नहीं। तो ये 20 लाख रुपए हम किस तरह खर्चेंगे? ये शादी के और बच्ची के बिस्तर वगैरह जो बनाने, उसको चीज बनाना, खाना, उसमें लगे हाल के पैसे। ये उसमें लगेगा? उसमें लगेगा। हुक्मरान आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप उनको? हाँ जी, उन्हें ये चाहते हैं गरीबों के लिए कि सोचें, पहले कुछ बेहतर करें, सस्ताई करें। जो बाहर तो यही बता रहे हैं कि सस्ता हो गया है, सस्ता हो गया। नहीं, वो सब्जी वगैरह में तो हुआ है, लेकिन बाकी बिलों में और उन चीज़ों में कोई। बल्कि बिलों में अभी वो 14,000 रुपए जो 500 से नीचे यूनिट थे, 2 महीने का था रिलीफ दिया। वो 2 महीने का दिया। उसके बाद बत्ती वैसे बहुत कम इस्तेमाल हो रही है। असल बात तो ये आगे जाके तो आप क्या कहते हैं? कुछ हुक्मरानों से कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसा हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है उस मुल्क में, शायद वो खुद जिंदा होते ना तो देख के खुदकुशी कर लेते। इस मुल्क का, इस कौम का, इस मुल्क की किसी चीज़ का इससे कोई मुखलिस नहीं है। हर बंदा जो सीट पे बैठा हुआ ना, वो अपने घर को देख रहा है। ज़बानी कलामी बयान तो हम कितने सालों से सुन रहे हैं मीडिया के। ये बयान देते हैं ना, ये तकरीरें जो अपना इनके लिख के देते हैं मुशीर हैं, वो तो बड़ी देर से हम सुन रहे हैं। तो ऐसे क्या लिखने का अमल दरामद तो उस पर कोई नहीं होता, उसमें अमल दरामद कोई नहीं होता। के बंदे पे असर कोई नहीं होता। जितने बड़े बड़े वो बयान टीवी पे आगे देते हैं, वो टीवी तक रहते हैं सिर्फ। आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। जो आज हम आपके शो में दिखाने की आपको कोशिश कर रहे थे वो यही थी कि हुकूमत के दावे बहुत ज़्यादा हैं और वो कह रहे हैं कि चीज़ें जो सी कम हो गई हैं, महंगाई सिंगल डिजिट पे आ चुकी हुई है। मैं यही जानना चाह रहा था कि 1000 रुपये का नोट अगर आप लेके निकलें, आप 1000 रुपये का नोट लेके निकलें और आप सड़क पे जाएं और आप कोशिश करें कि 1000 रुपये में कुछ ख़रीदना चाहें तो आप नहीं ख़रीद पाएंगे और आपको ये लगेगा कि अभी भी कुछ चीज़ें कम रह गई हैं। 1000 रुपये की वैल्यू आज जो पहले थी उससे ज़्यादा गिर चुकी हुई है। तो यही मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि अब हम आज जो जानने की कोशिश कर रहे थे वो यही कोशिश कर रहे थे कि ये 1000 रुपये के अंदर हम अगर राशन लेने निकलें तो इसकी वैल्यू क्या बनती है। और वो जो कहते थे कि उस वक्त 43% महंगाई थी, 40% थी, 28% थी उस परसेंटेज में, और अब जो सिंगल डिजिट हुई है उसमें क्या फ़र्क है। और ये जानने मेरे ख्याल से मैं बड़े अच्छे तरीके से हमने कोशिश की बताने की। बाकी फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।